second is thing like I've been to China. China में people doesn't wear professional clothes. अच्छा प्रोफेशनल नहीं पहनते. वो नहीं पहनते. अच्छा. They will meet you in shirts and t-shirts and you know jeans भी पहना है. I have been to trade fairs जहाँ पे people shorts में आए थे. The product that suits you well, जिसमें आप ब्लेंड हो सकते हो, जो आपको सूट कर रहा है वो करो. भले मार्जिन कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, वॉल्यूम्स कम एंड ज़्यादा हो सकते हैं, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ अनदर एक्सपेक्ट. बट जो आपको प्रोडक्ट के साथ ब्लेंड करना पाए आप वो एक्सपोर्ट करो, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आप स्ट्रेंथ बना सकते हो, जो आपको लगता है सस्टेनेबल लॉन्ग पीरियड्स है वैसा. लाइक एंड कीप इनोवेटिंग. ये चीज़ भी मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि सपोज आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ मखाना. पीपल आर एक्सपोर्टिंग मखाना, राइट? बट अब आप अगर मखाने में फ्लेवर ला देते हो, मखाना फ्लेवर्स, सो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है. कि यार इसको तो बदलो, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, यहाँ पे CRM लाना चाहिए. अभी भी वो बुक स्टाइल चल रहा है कि इन एंड आउट का एंट्री हो रहा है. अब फिंगरप्रिंट वाला ले आओ, लाइक ये सब है. लेकिन दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. grandfather, generally my grandfather is not ready to accept कि ये सब नए चोचले हैं. You know that is the challenges that you face. But what we have learned like okay, धीरे धीरे उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है कि you have to be patient. आप एकदम से जाके उन पे थोप नहीं सकते. पूरा चीज मत करो, वो उनका बनाया हुआ है, वो उनका एनवायरनमेंट है, आप उनके एनवायरनमेंट में जा रहे हैं. Kevin, hi, welcome to the Next Wave podcast. Thank you. Kevin, you are from this company called Aura, and like you know, you are into manufacturing dyes. Correct. Different kinds of dyes. Yeah. So if you could just briefly talk about your company, because your company is a company that was formed in 1992. Yeah. And you're a third gen entrepreneur. Yeah. So if you can share a little bit on the company, it could be very interesting for us to know. And what do you do in this company? So basically, this company was started by my grandfather in 1982, as you said. I'm the third generation, and so they started with the acid and direct dyes. Okay. My grandfather started with the acid and direct dyes. Okay. Then my father joined the company. He did. That was when, I think. My father joined in 1996. Okay. 1996. He started he joined the company and all. Okay. And they together started, all those things, the manufacturing dyes, acid. And that time the textile dyeing was very high. The cotton mills were very high. Okay. So वो उसमें जा के डाइस बेच के आते थे. आपको कौन सा डाइस चाहिए, आपको कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, वी विल डेवलप इट फॉर यू, ऐसा टाइप का. सो दे हैव स्टार्टेड दिस कंपनी एंड आई जॉइन द कंपनी इन 2015. So I joined as a third generation. So my vision was to expand this company globally. So I have started the exports in this company. Okay, wow. And it's been 9 to 10 years and we are doing very well in the company. Okay. Yeah, so this is the basic gist of idea of our company, what we do. Amazing. Yeah. So Kevin, for our audience who are mostly MSME founders, and these are founders, these are startups, these are people trying to look for ideas to grow businesses, or these are founders who are stuck at certain level of business and trying to grow more. Yeah. What you're trying to understand is getting your perspective and how it can help these guys. So we're going to talk about 3 aspects. Okay. One of the aspects is going to be about the product, what you're manufacturing and how you're doing it and everything. And the second part of it would be you as a person, how you are, how you have got the mindset and abilities. And the third thing is going to be about the factory, in terms of how you've been able to value add and how you've been able to get better at it. Because being in a family business is very challenging. And in your case, it's your grandfather started the business, and I understood from you that he's still in the business. He's still in the business. So touchwood, he's still there. Because of the legacy and the knowledge and the connections they bring in, because they have a different flavor that they bring into the business. And as a second generation, there's a different kind of challenges, and the third gen has a different challenges. So that's what we've understood so far. And आपने भी कहा कि you are making these products in dyes का आप काम कर रहे हैं. And started 1990s where India में recently तभी India भी open up हुआ था. And सारा सब लोग manufacturing देख रहे थे, डेवलपिंग स्टेज चल रहा था. So मुझे ये समझना है कि भाई एग्जाम्पल ये जो डाइज है ये कैसे बनता है. I mean so initial part of it में how is the manufacturing of these dyes that happen, इसके stages क्या होते हैं, या फिर macro steps में अगर बता सकते हैं कि भाई 3 step में 5 step में how are these stages. I can ऐसा first of all you need to procure the raw materials. Okay.
रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर किया. So ये क्या होता है रॉ मटेरियल? I mean it's रॉ like मटेरियल्स लाइक सॉल्ट okay एंड HCl, Okay. like acids okay जो साथ में आते हैं. okay Na sodium chloride salts, like so अलग-अलग kind of अलग-अलग chemicals kinds of chemicals procured. आते Okay हैं हाँ that you need to according to your product wise. Okay. जैसा आपका जो होता है वैसा वो आपने रॉ मटेरियल्स इकट्ठे किए हाँ and then you need to start take the batch. okay The batch is like you just blend all these raw materials at particular temperature. ये आपका with a particular temperature, composition. at a particular composition ये इतना होना चाहिए. हाँ It's all like making a सब्जी. हाँ आप सब्जी बना रहे हो हाँ तो आप क्या करोगे? पहले सब्जी लाओगे, फिर आपके पास जो नहीं थी धनिया नमक हाँ वो सब आप उसके प्रोपोर्शंस में डालोगे. हाँ फिर आप उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुक करोगे. okay या Okay. कि इसमें इतना होना चाहिए, इसका इतना कलर आ जाना चाहिए. okay okay देन थोड़ा सा आप निकाल के उसको चखते हो. हाँ is it used taste is it? Yeah, we didn't taste it. Okay. But it's like कि आप They उसको test it. Test it. We Okay. test it on the dyeing cloth and everything. Okay. कि okay now this property is very fine. Okay. ये कलर चढ़ रहा है इस पे कल इस okay पे. okay तो then you know कि dye is ready. Then Okay. it goes to the last stage filtration. okay Because the end product जो हमारे पास आता है वो पाउडर में आता है okay लास्ट में. okay बट जब डाई बन रहा होता है तब वो लिक्विड फॉर्म में होता है. okay तो लिक्विड से फिर हम देन स्प्रे करते हैं हम उसको, okay फिल्टर प्रेस करते हैं. Okay. तो लास्ट में आपके पास आता है पाउडर फॉर्म. okay वो पाउडर फॉर्म आता है, फिर उसको भी एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वी हैव टू डू ब्लेंडिंग. okay या okay तो वो डाई को ब्लेंड किया जाता है ताकि वो एक प्रोपोर्शनेट हो जाए, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए okay वैसा. एंड देन योर प्रोडक्ट इज रेडी. okay okay या okay एंड देन यू कैन यूज इट फॉर डाइंग फॉर वेरियस एप्लीकेशन, वॉट एवर एप्लीकेशन. and these are different colors right? different colors, red, blue, black, green, yellow, okay every okay different color. so you take these different chemicals mix them together Yeah, and different compositions you cook it for certain temperatures yeah. for a quantified period of time You have to manage the pH level. जो technical terms जैसे pH acidic level है, या वो base सब level है, जो basic भी है. level सब आपको we have to maintain. हाँ you maintain it and then as per the spec required Yeah. आपको जो चाहिए and once it is done you test it Yeah. and testing के बाद में you take it out and then you do after testing you are able to then Filter press. and filter press the whole and thing. spray it, right? Like and then it becomes a paste and then eventually it becomes a powder. powder. Correct. So then this is the powder. This that is the powder form. That is the final form which is used in application. Correct. And so as you said कि लेकिन आपने कहा कि भाई देर अलग अलग कलर्स के ये आ जाते हैं. These are dyes जो अपने को एग्जाम्पल जो Correct. फैक्ट्रीज बनाती है. Yeah. And इंडिया में भी देर आर वेरियस बेल्ट्स which are famous for example dyes के example Dyes with के. Ankleshwar I think is a huge belt for Ankleshwar is chemicals. built. Yeah. So ऐसे belts हैं and one of the things as like you know normal common people like you know हमें ये नहीं पता कि ये dyes कहाँ कहाँ use होते हैं. इसके applications diverse हैं. Very nice. So like अगर आप बता सकते हैं कि भाई like you know in day to day life like you know ये dyes कहाँ कहाँ use होती है colors and something. Basically जो people को पता होगा कि like कॉटन, नायलॉन, सिल्क, टेक्सटाइल पे तो हम यूज करते ही है. हाँ तो जो भी कलर वाले अपने कपड़े दिखते हैं. नॉर्मल एप्लीकेशन. बट जो हिडन एप्लीकेशंस है लाइक द वुड, द वीनियर्स. ओके जो घर पे लग्जरी आप देखते हो. हाँ हम देखते हैं कि जो Laminate है क्या? लैमिनेटेड होते हैं. अच्छा these are all Veneers, colors. जो Okay. वीनियर्स बोलते हैं हम. ओके ओके तो उस पे भी डाई जाता है. ओके दैट इज ऑल्सो बिकॉज डाई वुड पे काफी पेनिट्रेट होता है अंदर तक. इट गेट्स एब्जॉर्ब. इट गिव्स एब्जॉर्ब एंड इट गिव्स वेरी गुड लुक. ओके So wood application is the hidden thing that Things. people doesn't know. ओके Other is also anodizing Okay. aluminum. ओके Yeah. So जो मोटर पार्ट्स के जो पार्ट्स होते हैं हाँ. मोटर एसेसरीज पे उस पे जो एल्यूमिनियम होता है उस पे जो आप कलर देखते हो ओके वो भी इस पे जाते हैं. दैट इज स्प्रे पेंटेड. As a spray painted also, as a dyeing aluminum also, everything. Spray Okay. also in both. So it's like mixed with something and then painted Yeah, and then it's also always it's yeah. mixed. But the basic raw material जो उसका बोलते हैं वो dye है. Oh wow. Oh, Yeah. oh okay okay. So that iPods आपने देखे होंगे छोटे छोटे. हाँ ओके ओके. उस पे जो even- कलर आते थे पिंक, येलो. Okay. So all that aluminum is dyed aluminum. Okay Yeah. okay 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 iPhone के back covers. okay Yeah, okay. that's very good. So anything that you see colored, I think maybe a lot of dye plays a role in that. Made a lot of. So like you know like handbags भी हो गए like you know बहुत. Handbags जैसे आप लेदर के होते हैं. हाँ So हम जो एसिड डाइज बना रहे हैं हाँ वो लेदर पे जाता है. okay तो all the browns, Okay. black shoes, Okay. belts you Okay. see, okay and you are importing from Italy, okay all Europe, Spain से आप ये सब import कर रहे हो. okay. बट वही इटली, स्पेन यहाँ से डाइज मंगवाता है. Oh that's interesting. Yeah. So they take the color So from they India. take color from India Okay. because leather is very available there. अच्छा आप टैनरीज देखोगे. हाँ हाँ हमारे यहाँ पे जैसे कानपुर में है टैनरीज हाँ. बट इज वेरी स्मॉल स्केल. चेन्नई में है हाँ. वेरी स्मॉल स्केल. हाँ. बट इटली एंड स्पेन इन सब जगह पे टैनरीज का हब है. okay because there are a lot of
cows or there are a lot of cows, a lot of so animals. we do not kill it, but हाँ, they don't, they do. हाँ, So वहाँ पे वो लोग का leather abundance में है. okay, So what they do is they import dyes from India okay, to their country. okay, They dye the leather, Okay. all the process, everything they do, okay. and then they export it back to India and other countries. Correct. So just brand it and this brand it, label it, Branded label. you know, high quality High perspective, quality and then that is again sent back to India, Send and we back just to buy India, it. which various not just India, to other countries. To other countries as also, well. yeah. I think. आप जो नायलॉन या फर के आप जैकेट पहनते हो, हाँ, that is also dyed. okay, Yeah. okay, okay. So everything. Okay. And even in context of अभी तो कैसे है कि पहले detergents I think used to come in blue. Now they come in yellow women. detergents, green Yeah. detergents, उसमें भी डाई का यूज होता है. Okay, okay, Yeah. okay, okay. So लिक्विड सोप, बेसिक सोप, जो भी आप सोप्स देख रहे हैं, okay, everything. okay, okay. And so is there any functionality in these detergents when it comes to yellow color and blue color, or it's just the color perspective? It's the color perspective also, and थोड़ा टेक्निकल भी रहता है कि अच्छा. we have to maintain that pH level Okay, and it shouldn't be harmful. okay. तो तो जैसे मतलब आप डाइज आप लेदर का है, हाँ, सो देर आर मैनी लाइक क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन लेना पड़ता है हमको. एक हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक सेट है, okay, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है. जैसे रीच हो गया, गॉड्स Okay. हो गया, okay. दीज आर ये सब डाई के हैं? ये सब Reach and- डाइज के standards स्टैंडर्ड्स international? है इंटरनेशनल, जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं. Okay, okay. दैट योर डाई शुड बी यू नो अमाइंस फ्री, Hmm. मेटल फ्री होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए. Okay, इट शुडंट अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ. okay, सो वी हैव टू मेंटेन ऑल दोस थिंग्स. okay. या एंड आपकी जो कंपनी है, आपने कहा कि नहीं दे यू आर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग टू लाइक नो ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, या एंड लाइक नो आपका रोल जो रहा है इट हैज़ बीन दिस एक्सपोर्ट वाला पर्सपेक्टिव. सो अभी तो क्या सस्टेनेबिलिटी बहुत चल रहा है, सो ऑब्वियसली ये सर्टिफिकेशंस आप बोल रहे हैं या फिर कंप्लाइंसेस बोल रहे हैं, तो इसमें ये भी एक पार्ट रहेगा कि भाई दे हैव टू बी मे बी लेड फ्री और मे बी सस्टेनेबल और सर्कुलर इकोनॉमी वाला. So sustainability is the core of Oracle Chem industry, you know, our Okay, company. okay. So we maintain it a lot. Sustainability ज़रूरी है आज के टाइम पे. कैसे करते हैं? Basically, so what we do is, first of all, जैसे आपने कहा ये reach gods. हाँ. So what we do is maintain the quality. So we follow all the international standards, all the norms of reach, regulations हो गया. These are all the technical terms, but ये सब यूरोप एंड यूएस में चलता है. Okay, तो उनके ऑडिटर्स आते हैं उनके validate ऑर्डर्स आते हैं. ऑडिटर्स भी आते हैं वैलिडेट करने के Yeah, लिए? they have the auditors also. Okay, yeah. okay. So we have to follow them. That's the thing. Okay. So we do the compliance, ऑडिटर आते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं, and they qualify us, They and then qualify- the order. not just every time, but अच्छा. एक हमको जैसे सर्टिफिकेट लेना होता है. हाँ, जैसे हमने ZDH का सर्टिफिकेट ले लिया या गॉड्स का सर्टिफिकेट ले लिया. So when you took that certificate, हाँ. the auditors will come into your factory. Hmm. They will see all the things. They will test all the dyes that you are making. अच्छा, वो लाइव वो प्रोडक्शन पे उसी पे करते हैं? Production पे they Oh. all they take the images, video and everything. Then they go back. They do assessment. SOP, everything. सब देखें. Everything. Hmm. And these auditors come from Switzerland. Oh. The ZDHC one, the blue sign वाले हैं. Hmm. These come from all the international. So they come from there. They do this, all this. So it's a very tough thing. But Tough yeah, thing, expensive thing, expensive thing, intense thing. Correct. But this is just for the environmental thing. Like you do not like tradition dyes में ऐसा होता था in 1990s. हाँ. आपने गंदा पानी फेंक दिया, ये सब कर दिया. अब ऐसा नहीं ना. गवर्नमेंट इज मोर स्ट्रिक्ट विच इज नीडेड, एंड ETPs आर देयर जो वेस्ट वाटर का हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको रीयूज करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स फॉर द सस्टेनेबिलिटी वी डू दिस ओनली. Okay. या वी यूज दी जैसे पैकिंग हो गया, सो वी यूज रीयूजेबल पैकिंग. Okay. वैसा अच्छा, मतलब जो बट दीज आर इन 25 kg बैग्स? 25 kg बॉक्सेस, बैग्स, Okay. जंबो बैग्स, एनीथिंग. ओके, तो आपने पैकिंग में भी थोड़ा सस्टेनेबिलिटी पैकिंग एलिमेंट ऐड में कर सस्टेनेबिलिटी दिया? लाया. ओके, ओह दैट्स इंटरेस्टिंग. So that is the thing. So we have to take care of the nature. Because we are taking so much from the nature, we have to give it back. ओके, ओके, We have it in good way, not just bad way. ओके, ओके. सो लेकिन आपने कहा कि भाई लेकिन ऑडिटर्स आ रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, ये सारी Yeah. चीज़ें चल रही हैं, एंड फॉर द डाई इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी इज़ अ बिग चंक ऑफ व्हाट आप कर रहे हैं मे बी, एंड because of this certifications approval, Yeah. you are getting more orders, or More you will orders. get more orders Correct, because you are compliant to what they want. Right. बट ये सब करना क्या इंडिया में एग्जाम्पल इट्स वेरी चैलेंजिंग, राइट, टू डू ऑल दीज थिंग्स एंड बी कंप्लाइंट एंड टू टेक केयर ऑफ वर्कर्स एंड टू डू द होल थिंग. सो व्हाट आर दी लेकिन तो आपके डाई मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंजेस क्या क्या है, लेकिन व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग, और या फिर वो कौन सी चीज़ें हैं? So right now, so the major thing is like there is a global push towards the biodyes.
Okay. People What are want to biodyes? shift from petro synthetic base to biodegradable dyes, Oh. plant based dyes. Okay. And there are new technologies coming in which like वो आपके पानी को कम यूज करेगा, अच्छा वैसा ओके वैसा काफ़ी टेक्नोलॉजीज नई आ रही है जो आपके बायोहजार्ड जो प्रोडक्ट आते हैं, हाँ जो आपका वेस्ट बचता है वो आपको रिड्यूस करने में हेल्प करता है. ओके एंड ऑल्सो देयर आर न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर फॉर द यूवी, लाइक कलर बदलता है, ओके द डाइज दैट कैन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू यूवी टेम्परेचर और pH, वैसा. ओके So these are the new things that are coming right now. So Okay. these are the what can say, like यही challenges है जो हमको face करना है to evolve to the new to evolve to standard. the new thing. Okay. Also like government is also pushing us, कि you have to maintain the environment safety is very much now. तो एक greener technologies में हम जा रहे हैं धीरे धीरे. There is a push, there is slow push, but people हर are vertical shifting. में. हर vertical में people are shifting. Okay. जैसे मैंने आपको बोला है कि boxes का जो हम यूज करते हैं हाँ, वो तो packing में हुआ. पैकिंग का, हाँ. तो like it's a fact, like हाँ. वो एक पार्ट हुआ. हाँ जैसे हम पैकिंग इज द पार्ट ऑफ द डाइज, हाँ तो वहाँ पे हम लाए, हाँ जैसे ही हम प्रोडक्शन में ला रहे हैं, हाँ. तो हर वर्टिकल में वी आर ट्राइंग To become green. कुछ टू बिकम वैसा. ओके 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 सो बट ये बायो जो आपने बोला कि भाई दीज आर बायो डाइस, बायो बेस्ड. so it sounds like a little bit ahead of sustainability. It is ahead of sustainability. And again आपने भी कहा कि these are plant based dyes. Plant based dyes. Right. So the raw materials or the example, this might be contributing some raw materials, but these are again plant based raw materials which are contributing to this. Okay. So and आपने कहा कि this is one future trend जो आप देख रहे हैं कि भाई dye industry के लिए plant based dyes are gonna be coming, which are bio dyes. So आपको कब लगता है कि भाई when would this hit the industry towards a mass scale, या फिर this mass scale is very hard because plant based से जो हम extract करके dyes बनाना चाहते हैं, it takes a lot of time. Okay. Effort, cost and money. Long process. Okay. So long process के लिए आपका effort बढ़ जाता है, आपका costing बढ़ जाता है, and फिर उतना production भी नहीं आता है. That is also not production. Challenge of that part. So that is very challenging. So ये future आने के लिए बहुत time है अभी. Okay. But you have to be धीरे धीरे prepared for it. Okay. You have to shift towards it little slowly. Okay. वैसा. Okay. Alright. So so ये थोड़ा सा हमने बात किया प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन थोड़ा सा बात किया द फ्यूचर दैट इज बायो डाइज दैट आपने बताया, एंड द काइंड्स ऑफ डाइज यू आर डूइंग, लेकिन और इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, लेकिन वो आपने बताया. सो एंड नाउ जस्ट टू गेट इनटू द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव ऑफ talking about के as your journey as third generation entrepreneur, third generation founder in the company, तो तो उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दीजिए कि जैसे आपने कॉलेज स्कूल फिनिश किया एंड देन यू गॉट इनटू कॉलेज, सो माइंडसेट कब क्लियर हुआ कि यू विल जॉइन फैमिली बिजनेस? वाज इट इन स्कूल, वाज इट इन कॉलेज, और वाज इट बिफोर दैट, और वाज इट आफ्टर? I think it was after finishing the school. School तक तो like हम सोचते नहीं है कि हमें क्या करना है, just जो फ्रेंड्स चाहते हैं, जो फ्रेंड यहाँ जा रहा है वो जा रहा है, we used to do that. Okay. But after finishing school, जब कॉलेज में एंट्री लिया, and then you start thinking कि like अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, लाइफ आगे बढ़ने वाला है, और so let's just start going to factory. Okay. देखते क्या हो रहा है, सेट हो रहा है नहीं हो रहा, because that 4 to 5 years you have time. आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तब. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई टुक दैट एक्सपेरिमेंट कि चलो लेट्स गो टू फैक्ट्री, सेट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेट्स गेट इनटू दिस, व्हाट इज दिस, लाइक देखते क्या होता है. एंड स्लोली आपके खून में शायद आ ही जाता है वो. तो आई स्टार्टेड गोइंग. But you going during college time या फिर after college? I used to go after college. After college. College used to get over at 1 PM 2 PM. So after 2 PM I directly go to the factory. अच्छा. But what do you used to do? आप क्या करते? वहाँ पे जाके लैब में बैठो, क्वालिटी देखो कैसे बन रहा है, डाइस क्या है. Just observing. And starting 1 year तो I just used to go ऐसे जैसे चिल करने का, जाके बैठो, sit. Anyways you're not paid. Yeah, I was not paid and I was like sit. Okay. Paid and not and paid and sit. Paid and sit. So not paid. Not paid and sit. Okay. Yeah, like sit है, देखो घूम रहा है, फिर ठीक से काम कर रहा है कि तू नहीं. Because that first year तो like आपको मेरे माइंड में ऐसा होता है कॉलेज टाइम पे कि मेरी फैक्ट्री है, मेरा है सब, वैसा. बट देन यू रियलाइज स्लोली कि नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. यू हैव टू
कुछ तो देना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको रिटर्न आएगा. देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ लाइक उनके लैब जो सो कॉल्ड, आई यूज्ड टू स्टे इन द लैब. कोई भी डाइस टेस्टिंग में आती थी तो मैं खुद टेस्ट करता था, खुद टेस्टिंग किया, खुद डाइंग किया, खुद दिखाया रिजल्ट्स एंड ऑल. तो समझा कि ओके ऐसा नहीं ऐसा होता है. ऑल द टेक्निकल थिंग्स आई लर्न इन द कॉलेज टाइम इन माई 4 years. सो दैट वॉज वेरी गुड पाथ कि आई लर्न दैट टेक्निकल थिंग्स जो भी था. Even before like properly joining. Before properly joining, I got to know कि okay, this is how it works, this is how it is. Because it is very important. आपको कोई आके कस्टमर आके या कोई दूसरा आके आपको बुद्धू ही नहीं बना सकता कि आपका क्वालिटी में ये प्रॉब्लम है ये. बिकॉज आपको जब तक खुद को नहीं पता होगा कि उस चीज़ को टेस्ट कैसे किया जाता है या तो आप बुद्धू बनते जाओगे. तो वो बहुत बेसिक पार्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट है. तो वो मुझे कॉलेज जब तक ख़त्म हुआ तब तक इट वॉज डन. ओके. सो लेकिन तो आपको हेल्प मिला कि सारा अलग अलग पर्सपेक्टिव्स डिपार्टमेंट वाइज समझने के लिए कि भाई लाइक दीज थिंग्स हैपेंड. ओके. सो ये हो गया है, लेकिन आपने कॉलेज फिनिश किया, आपने सारे लर्निंग्स किए, लेकिन सो देयर इज दिस पर्सन, वो इवॉल्व भी करा एंड उसने डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे एग्जाम्पल बिजनेस ही करना है. एंड देन वो ऑफिस ज्वाइन करता है. सो आपको आपका फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस फुल टाइम वाला याद है? या सो अभी ऐसा हुआ कि लाइक आफ्टर कॉलेज इट वाज गुड. आई यूज लाइक माइंड में क्लियर था कि फैक्ट्री ज्वाइन करना. बट फैक्ट्री ज्वाइन करके लेकिन पापा तो बहुत खुश होंगे. पापा खुश थे बट पापा वाज लाइक कि तू करेगा क्या. अच्छा, दैट्स अ काउंटर. ओह वाओ, दैट्स द फर्स्ट टाइम. करेगा क्या, ये तो मैं सब कर ही रहा हूँ यार, बाकी सबके लिए आदमी है, तू क्या करेगा. लाइक वेयर विल यू प्ले रोल, कहाँ पे आपका रोल क्या होगा. अगर आप खाली फैक्ट्री में ज्वाइन कर लिया, वो चल रहा है फैक्ट्री, दैट इज फाइन. बट what output you are bringing to the factory वो nil था. So that is when I started के let's see I will start the exports into this. Okay. Yeah. And this is 2015. 2015. So 2015 after completing college मैंने फिर I started के चलो export करना है. So I used to search the job in exports. Okay. कि export करने के लिए export सीखना पड़ेगा. तो मैंने 1 year job किया है companies में. Okay. to learn the export. Okay, export क्या होता है, कैसे करते हैं. Okay. And meanwhile I'll also have the degrees of the export, like जो 3-3 महीने के 6-6 महीने के कोर्सेज होते हैं शॉर्ट टर्म. आजकल तो ये 10-10 दिन के आने लग गए. At that time there was 3-month courses और 6-month courses exports के. तो balancing practical and theory. Balancing practical and theory both. So that I will know good knowledge कि theory part अलग होता है एंड प्रैक्टिकल थियरी से बिल्कुल अलग होता है. बट व्हेन यू कंबाइन बोथ एट द सेम टाइम तब आपको माइंड में पूरा पिक्चर क्लियर होता है. ओके. सो दैट इज 1 year मैंने वही किया है. 6 महीने मैंने पढ़ाई की साथ साथ में एक्सपोर्ट्स की थियरी एंड 1 साल पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज कि क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या पेमेंट टर्म्स है, क्या क्वालिटी आता है, सब एवरीथिंग फ्रॉम A to Z. एंड देन इन 2016 आई स्टार्टेड द एक्सपोर्ट्स इनटू माय कंपनी. वाओ. सो लेकिन आपने जब आपके पापा को बोला कि भाई मेरे को लग रहा है कि हमको, क्योंकि वो लोग 1992 से कर रहे हैं. करेक्ट. सो इट्स ऑलमोस्ट बीन 20+ years. एंड उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया. उन्होंने नहीं किया. बट व्हाट यूज्ड टू हैपन लाइक उनसे लोग माल ले जाके एक्सपोर्ट करते थे. अच्छा, मर्चेंट ट्रेडर की तरह. बिकॉज एट दैट टाइम 1990s या 2000 में आप देखोगे तो बॉम्बे वाज वेरी नोन फॉर मर्चेंट ट्रेडर्स. So they were exporters. They were exporters. And you become the person whom from manufacturer. Supplying them. Okay. So पापा को कहीं ना कहीं माइंड में ये भी था कि कि ये अच्छा एरिया है. अच्छा एरिया है. You can start with this exports. That is where I came into the picture. Okay. So do you remember like his reaction when you told him this idea कि मेरे को लग रहा है, or it came from him or like it came from? It was a mutual decision. Like, okay. उन्होंने थोड़ा मुझे guidance दिया, no doubt, because we need guidance of parents. उन्होंने guidance दिया कि you can do this and that. Like okay, I want to go into exports. But वही कि 1 साल जॉब करके देखा कि मुझे फा रहा है कि नहीं फा रहा है. Am I built for this or not? वैसा. That is very important. Okay. ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए. Okay. आप मन से करोगे तो आपको दुगना आउटपुट आएगा. Okay. और आप बिना मन के करोगे तो 0 आउटपुट आएगा. Okay. वो चीज़ है इसके लिए. सो इंटरेस्टिंग. सो आपने वो एक्सपेरिमेंट किया दोनों तरीके से कि लेकिन एम आई बिल्ट फॉर दिस पार्ट. यस. एंड इससे वैल्यू भी मिल रहा है कि नहीं. ओके. सो ये पूरा हो गया, लेकिन आपने कॉलेज वाला पर्सपेक्टिव किया टू गेट अ फैक्ट्री वाला माइंडसेट. यहाँ पे आने के बाद में मैं क्या करूँगा उसका माइंडसेट आपने लर्निंग्स थियरी और प्रैक्टिकल दोनों से किया. नाउ अभी आप वापस ऑफिस पहुंच गए हैं या फिर फैक्ट्री पहुंच गए हैं. आपको आपका पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर याद है? लाइक व्हाट हैपेंड? या इट वाज वेरी स्मॉल ऑर्डर. ओके. सो व्हाट हैपेंड? इट वाज लाइक
2 lakhs का था, very small. In our field it is very very small, 2 lakhs, but it was very fine for me. I was very happy कि पहला order आया, I used पापा को जाके दिखाया, फैक्ट्री में बताया, people, employees were happy, चलो. Now we are an exporter. Yeah, we are not an exporter, but yeah, something good is happening. Okay. Something good is happening. New start is there. Okay. And it was very good feeling. पहला order आता है because when I joined the company, I remember 6 से 7 महीने मैंने कॉलिंग किया था, कोल्ड ईमेल्स किए थे, एवरीथिंग. कॉल रात को भी, जैसे यूएस मार्केट करना है वो, तो रात को कॉल करना पड़ता था, तो 10-10 12-12 बजे कॉल कर रहा हूँ, फिर सो जा रहा हूँ, फिर सुबह उठ के वापस, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज टाइमिंग. इफ यू वांट टू डू इन चाइना, हर कंट्री का टाइम जोन अलग है, so according to their country timings we have to call them to send emails and everything. Okay. So ये जो इंडिया में जो हम लोग सेल्स करते हैं ये सेम थिंग है, but timings are different and there is more professional approach. Okay. And you know you can't be just कि आप ले लो, प्राइस ले लो, ये ले लो. You have to make your company presentation, product का presentation, पूरा application, proper presentation उनको चाहिए कि आपका company क्या कर रहा है and all. कितने साल से and because in India what you can do is आप उस आदमी से जाके मिल लिया, तो आप एक बार मिल लेते हो तो आपको ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, आपने फैक्ट्री देख लिया, आपने ये देख लिया. बट व्हेन द सेम थिंग इज फॉर द अब्रॉड, यू कांट मीट द पर्सन एंड दे कैन विजिट फॉर फ्री. दे कैन विजिट बट नॉट फ्रीली एज लाइक ओके आपने कॉल किया मैं आ गया, ऐसा नहीं है. maybe once a year or once in 2 years they will visit. But before that, the things that plays most important is the trust. आपको ट्रस्ट बैठना चाहिए, एंड वो ट्रस्ट आपके फ़ोन कॉल से या आपके ईमेल से ही बैठेगा. सो दैट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो फैक्टर को एस्टेब्लिश करना, वो ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करना, वो रिलेशन बनाना क्लाइंट के साथ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो ये जो शिपमेंट था एग्जाम्पल लाइक सो विच कंट्री और विच इट वाज फॉर द स्पेन. सो आपने ऑलमोस्ट 6 months of calling किया and like you know emailing, presentations and everything. So export में initially you have to be very presentable, you have to be very professional. Correct. That is how European countries आपको देखते हैं. Not just Europe, US also, China people also. Okay. It's everywhere. ये standard है basically. ये standard है, and I would suggest कि आप ये follow करो. You have to be very presentable. ऐसा नहीं कि आप टी-शर्ट में बैठ के polling कर लिया, because video calls होता है. They ask for the factory tour also online. Okay, that's a video call, is it? That's a video call also. अच्छा, वीडियो कॉल में लाइव बोलते हैं कि भी फैक्ट्री भी दिखाओ. फैक्ट्री दिखाओ. अच्छा. Maintaining the trust for estimator. क्या आपको वो जानते नहीं है, अब आपको आज दिन के स्कैम्स कॉल 100 कॉल आते हैं, बैंक से लोन ले लो, ये ले लो, हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं. भले आपको ज़रूरत होगा, लेकिन यू डू नॉट नो दैट पर्सन, तो आप बोलोगे कि मिल के जा, एक बार बात करके जा, मेल भेजो, आप कंटिन्यूस से फॉलो अप लेता रहेगा वो आपसे. कम से कम लोकल में भी होगा तो भी आप 2-3 बार वो आएगा, विजिट करने आ जाएगा. फिर आप जाके उसको कहीं छोटा मोटा ऑर्डर दोगे. सेम थिंग इज फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स, बट यू कांट विजिट. सो उसमें वो ट्रस्ट लेवल डबल या ट्रिपल हो जाता है. सो यू हैव टू मेंटेन दैट. बहुत पैसा. ओके. सो इनिशियल पार्ट इज दी वन ऑफ द हार्डेस्ट चैलेंजिंग पार्ट रहता है. लाइक यू नो, तो वो आपने एग्जाम्पल पूरा ये बिल्ड किया इन टर्म्स ऑफ कोल्ड कॉलिंग एंड प्रोफेशनलिज्म एंड प्रेजेंटेशंस एंड फर्स्ट आइडिया, लाइक नो फर्स्ट ऑर्डर लिया, एंड देन इससे एग्जाम्पल आपके लाइक नो डैड को भी वो ट्रस्ट है, ग्रैंड डैड को भी ट्रस्ट है, एम्प्लॉयज़ को भी आए कि भाई नाउ ही इज एडिंग वैल्यू फ्रॉम वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ऐड कर रहा है. नाउ अभी एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ एंड आपने बोला कि भाई अगर नए एक्सपोर्टर्स हैं उनको लेकिन ये सारे एलिमेंट्स भी ध्यान रखने हैं इफ दे आर वांट टू प्रोफेशनलाइज द अप्रोच फॉर, अगर उनको एक्सपोर्ट में जाना है. सो ये एक पार्ट रहता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में कैसा है कि एक्सपोर्ट इज़ अ वाइड थिंग, एंड अभी इंडिया का क्या है कि इंडिया इज़ अगेन गोना बी ऑलमोस्ट नंबर 3 वर्ल्ड इकोनॉमी बाय 2027 जो लोग बोल रहे हैं. एंड ब्रांड इंडिया भी अभी एम्पलीफाई होने वाला है, राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज लॉट ऑफ इंडियन MSMEs आर नाउ पुशिंग फॉर ऑफिसेज अब्रॉड, ब्रांड्स अब्रॉड. वो पोजिशनिंग पूरा चेंज हो रहा है. वी आर ऑल्सो स्लोली बाइंग आउट सर्टन कंपनीज ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ अस आर ऑल फैमिली बिजनेसेस, राइट. सो आपने ये जो स्टार्ट किया, इट्स ऑलमोस्ट बीन लाइक यू नो मे बी 8 years बिफोर, 9 years बिफोर आपने पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया, मे बी 2016, राइट. सो इट बीन 8 or 9 years. सो and now you have scaled it, right? So scaling एक अलग गेम है, because now you have a team, right? पहले आपने वो पूरा प्रोसेस खुद किया था, correct? And then you have learned it and everything. So बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं जिनके मतलब थोड़े छोटे मोटे ऑर्डर चल रहे हैं, या फिर कुछ हैं जिनके मर्चेंट एक्सपोर्टर्स की तरह वो एक्सपोर्ट उनको कर रहे हैं, करेक्ट. सो इसमें कौन सी लर्निंग से, अगर आपने जस्ट छोटा एक्सपोर्ट चल रहा है, यू वांट टू स्केल इट, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि द लाइफ इन अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इज पूरा दिन चला जाता है, एंड देन आपको पता ही नहीं चलता है, एंड देन यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव टाइम फॉर स्केलिंग अप द बिजनेस. सो इवन आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मतलब
उनके पास इंक्वायरी आया तो उन्होंने किया और दे दिया, बट उन्होंने कभी स्केल पे सोचा नहीं है. राइट. राइट. तो आपने कैसे स्केल किया एंड एनी लर्निंग्स? सो व्हाट यू नीड टू डू इज, ये तो आपने कोल्ड कॉलिंग कर लिया, ईमेलिंग कर लिया, ये सब तो फर्स्ट पार्ट है. हाँ. सेकेंड पार्ट इज यू हैव टू विजिट देम. ओके. एक कंट्री सिलेक्ट करो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट जा रहा है वहाँ पे, या इसका इतना वहाँ पे है सेलिंग. वो कंट्री सिलेक्ट करो, वहाँ पे बायर्स अप्रोच करो बाय कॉलिंग देम एंड टेक अपॉइंटमेंट्स. आप ऐसे नहीं कि तुरंत जाके चले गए और आप फोन करो कि मैं आपकी कंट्री में, मुझसे मिल लो. नथिंग, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. तो आपको इंडिया में रह के ही पूरा शेड्यूल बना के यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, मैं 2 महीने बाद का, मैं सपोज टेक एन एग्जांपल 2 months, कि 2 महीने बाद मैं आपकी कंट्री में आ रहा हूँ और दिस वीक मैं आपसे मिलना चाहूँगा. तो आर यू अवेलेबल, कौन से दिन पे अवेलेबल हो, व्हाट टाइम सुटेबल फॉर यू. टेक अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम देम. ओके. एंड ट्राई टू विजिट मैक्स 15 to 20 clients in a country. Okay. Yeah, 15 to 20 clients in a So country. ये end customers हैं कि ये distributors? It can be end customers, it can be distributors, it can be traders, it can be anything. Anybody. Okay. Whoever is importing is your customer. Okay. Yeah. Okay. Okay. Also you can, this is the first way, like आप जाके उनसे मिलो, the tour visits करना. तो dots बना लेते हैं. Dots बना लेते हैं. एक first party होगा, आप ये करो. Second you can do is like वहाँ के agents को पकड़ो. Okay. Local agents होते हैं. So इनका क्या रोल है, agents? Agents help you to, you know, keep the stock there. अब आपका स्टॉक वहाँ रख सकते हो. आपको एजेंट्स, अगर लोकल एजेंट होगा तो वहाँ की जो पब्लिक है उसको आप पे ट्रस्ट जल्दी बैठेगा. बिकॉज योर लोकल एजेंट इज इन टच विद देम. ओके. सो एनी प्रॉब्लम इज देयर, योर लोकल एजेंट इज देयर. अच्छा, सो ही इज लाइक योर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर. करेक्ट. सो इट्स लाइक अ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गया कि आपने वहाँ पहुँचा दिया हमारा. प्राइमरी वो है. प्राइमरी है. दिस इज द सेकंड, लाइक व्हाट यू कैन डू इज टू एक्सपांड. कि आप लोकल एजेंट्स ढूंढो और वहाँ पे उनको अपॉइंट कर लो. वैसा, एंड मेक इट ऑन कमीशन बेसिस, एनीथिंग व्हाट एवर वर्क्स फॉर यू. कि तू इतना माल बेचेगा तो तुझे इतना % कमीशन मिलेगा. सो एक एजेंट को भी रहेगा कि आई सेल मोर टू अर्न मोर. वैसा. नॉट ऑन सैलरी बेसिस. सैलरी बेसिस में ही वोंट वर्क. ओके. सो माई सजेशन इज टू गो फॉर द कमीशन बेस्ड मॉडल. दैट इज वेरी lucrative फॉर देम ऑल्सो. ओके. तो एंड थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रेड फेयर. जैसे गवर्नमेंट ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं. In those countries? In those countries, in your countries, in their countries also. Segment based. Segment based पे. अच्छा. तो वो ट्रेड फेयर्स में स्टॉल लगाओ. तो आपको वहाँ से बेसिक लीड जनरेशन होगा. That is also very good part. Okay. So for scaling, these 3 are most important. Okay. 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 So इसमें कोई एक और समझना था कि लाइक नो आपने बोला कि लाइक नो पहला चीज़ है लाइक नो गो सेट मीटिंग्स 2 महीने एडवांस में स्केड्यूल कर लो, लाइन अप कर लो, एंड जितने भी डॉट्स है तो डॉट्स क्रिएट करो. लाइक यू नो मीट डिस्ट्रीब्यूटर्स, मीट एंड कस्टमर्स, ट्राई टू मेक एजेंट्स इन लेटर ऑन फेज, मीट ट्रेडर्स. फिर डॉट्स बन गए, डॉट लोगों से आपने इंटरेक्ट किया, एंड वंस इंटरेक्शन हैपन्स right, then you're trying to go to the next level and everything, and like you know you attend the trade fairs. Fairs वाला part करो. So इसमें एक और ये था like and have this agent with commission based model also. So कुछ लोग ये करते हैं कि भाई एजेंट्स रखते हैं एंड देन दे हैव मल्टीपल एजेंट्स. बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि लेकिन वो मल्टीपल एजेंट्स हैं तो देयर वुड बी गुड हेल्दी कॉम्पिटिशन. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज like you know then both the agents don't work. Correct. And then some but the thought is like that. So do you also reciprocate? This is wrong or wrong? I do not support this idea. Multiple agents, what happen is they will create an internal confusion. And internal rift create hoga. और demotivation create. Demotivation because the same customer can be approached by those 2 agents. And someone can offer you less, तो वो अपना कमीशन में से कट करके दे देगा. And someone won't. So it will affect your brand image. Okay. Ultimately, it's going to affect your brand image, your company. So you recommend one agent per country? One agent depends on the country size also. Or city. City. Okay. कि आप डिवाइड कर दो रीजन्स. कि सपोज जैसे we talk about India, सपोज गुजरात है तो अहमदाबाद के लिए एक एजेंट अलग हो गया, राजकोट के लिए एक अलग हो गया. एंड दे शुड नो कि ओके कि अहमदाबाद का एजेंट अलग है, राजकोट का एजेंट अलग है. और इफ द एजेंट इज कैपेबल टू हैंडल होल गुजरात, देन इट्स वर्केबल फॉर यू, देन इट्स फाइन. ओके. सो इट डिपेंड्स ऑन द एजेंट कैपेबिलिटी आल्सो. उसका रीच कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, वैसा इट डिपेंड्स ऑन देम. ओके. बट मल्टीपल एजेंट्स, अहमदाबाद में 2 एजेंट रखूंगा तो चैलेंजेस आएगा. भी चैलेंजेस फॉर यू ओनली. ओके. सो स्केलिंग अप वाले आपने एस्पेक्ट्स बताया, लेकिन एजेंट रखो बट मल्टीपल मत रखो, एंड ट्रेड फेयर्स अटेंड करो, एंड आई थिंक गवर्नमेंट आल्सो गिव सम सब्सिडीज ऑन ट्रेड फेयर्स आल्सो, सो दैट इज आल्सो वन पार्ट ऑफ इट.
तो मुझे ये समझना था कि आर देयर एनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन अगेन एक्सपोर्ट शिपमेंट्स, या फिर आपको ऐसा कुछ चैलेंजिंग शिपमेंट लगा है अभी तक के 8-9 years में, सम चैलेंजिंग शिपमेंट हैज हैपेंड एंड देन देयर इज सम स्टोरी अराउंड इट? चैलेंजेस आएंगे, कुछ भी करोगे आप चैलेंजेस आएंगे. हाँ. एंड अभी जो ग्लोबल मार्केट चल रहा है इट इज़ वेरी अनस्टेबल. इन व्हाट वे? इन लाइक ट्रम्प का भी जो थ्रेट वो चल रहा है, टैरिफ के हिसाब से है, एनीथिंग. अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, दैट टाइम आल्सो वाज वेरी अनस्टेबल. अभी भी वॉर चल ही रहा है. सो मार्केट में कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, अनस्टेबिलिटी रहने ही वाली है. सो चैलेंजेस विल कम डेफिनेटली. जैसे मेरे को याद आ रहा है ग्रेड सी का प्रॉब्म हुआ था पनामा कैनाल वाला. So that time we had the orders and the freight was shoot up to twice or thrice. So then double digit freight. Double digit. Not just double, triple digit freight हो गया था. Oh, yeah. So we had the export orders of Europe. This freight was included. So freight was on our head. This was the Evergreen vessel getting stuck in yes. So that time पे freight was triple. So we had the orders of Europe. And so now obviously triple freight में your costing won't work. We don't have that much huge viability. Viability नहीं है. So I remember what I did, I was just send an email to customer कि madam this is the problem, ये हुआ है. Be honest with your customers. What I've learned that you have to be honest with customers and build good long-term relationships with them. But how does honesty help? Honesty helps because I just texted and I just mailed them कि madam this is the problem, you also know Red Sea का problem हुआ है. Freight is now tripled. We cannot bear the freight, and you need to increase the freight by this much amount. You can also check with your agent. आप आपके यहाँ से भी check करो, आपको यही same freight मिलेगा. And then she just checked it with the agent and she found it true. And then she increased the the amount of freight in my order. अच्छा, तो balance कर लिया. तो balance हो गया. So that is the thing. Like if I would have given any other excuse कि मैडम माल नहीं है या एनीथिंग एल्स कि मैडम शिपमेंट में टाइम लगेगा, रॉ मटेरियल्स का प्रॉब्लम है, तो दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड इमेज ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर ब्रांड. So just be honest with your customers. They are also human, they will also understand. Okay. So now आपने challenges था ये वाला, you've been honest with customers. You were scaled by setting up agents across, and any advice फॉर जब अपने एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो क्या हर कंट्री का कल्चर अलग होता है. करेक्ट. तो हम किसी को बहुत अच्छे से हाई बोलते हैं तो उसको और कुछ लग जाता है, और अलग तरीके से रहता है. एंड देयर आर डिफरेंट थिंग्स ऑफ इट, लाइक यू कीप अ ब्लेजर समवेयर, समवन थिंग्स एंटिसिपेट्स दैट. सो एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी या लर्निंग आपको कल्चरल पर्सपेक्टिव में, इन बी इन यूरोप और चाइना और और यूएस और इन अदर कंट्रीज? आई विल शेयर दिस. लाइक I've been to China, I've been to Europe. And Europe mein when you go for the meetings, they start very early, 8 a.m. अच्छा, 8 a.m. meeting start हो जाता है? 8 a.m. they give you appointment. अच्छा. Okay, meet us at 8 a.m. अच्छा. Right. So they start very early. Same in the China, they start very early. अच्छा. But in India, people start at 11, 10:30, 10 a.m. So अगर आप वो mindset से वहाँ जाओगे कि 10 बजे मिलना है, तो आपका एक मीटिंग लूज हो जाएगा. Okay. So this is the cultural difference. Second is thing like I've been to China. China में people doesn't wear professional clothes. अच्छा, प्रोफेशनल नहीं पहनते? वो नहीं पहनते. अच्छा. They will meet you in shirts and t-shirts and jeans भी पहना है. I have been to trade fairs जहाँ पे people shorts में आए थे. Oh. Yeah. And it's not a tech fair. And it's a manufacturing fair. It's a tech manufacturing fair. It's like a trade fair only. Okay. But people are there in shorts. Okay. But when they sit with you, they will give you very big order. Okay. So don't judge people according to their clothing. Okay. That was very shocking for me also. Okay. वो बंदा बड़ी गाड़ी में आया होगा, आपको नहीं पता, and उसके पास बहुत डिमांड होगा. So in China, people are more concentrated on the work. कि काम होना चाहिए. They are not clothing से उनको इतना इफेक्ट नहीं होता है. Okay. But same when you go to Europe and US side, वहाँ पे आपको you have to be professional. Okay. You can't just wear anything. Maybe US में तो आपको सूट पहनना पड़े. All the professional clothing होना चाहिए for the Europe and USA, but not for the China. This is what I have learned. I've seen the cultural difference there. Okay. That was very shocking for me, but it's a good thing. I think shorts, I think I've seen in tech fairs. In tech fairs it's fine, but in the trade fairs, I have people seen in shorts and they're sitting with me and talking with me. We in blazer example, then it's like total contrast. Blazers are 1 in 100 in China. I've seen 1 in 100. Okay. Yeah. Okay.
दिस इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन फॉर माई प्रोडक्ट. Okay. डिपेंड कर सकता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, बट Okay. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माई प्रोडक्ट. Okay. Okay. So अभी तो ये ट्रेड फेयर्स में जाना, एग्जाम्पल एक्सप्लोरिंग दिस कंट्रीज फॉर बिजनेस, like you know, knowing language, not knowing language, all these things will happen. Any tips or advice for fairs? Like, you know, because international fairs में क्या है, a lot of things play a part in terms of positioning of the booth, in terms of how you do the setup, in terms of how you travel, in terms of छोटे tips also, in terms of what you can carry as food, because Indians are again the flavor, and but now there are a lot of Indian restaurants across the world. तो वो भी reach मिल जाता है. But any advice on travel tips, or any advice on, like, you know, how to handle a fair, or related travel tips for the fair, international fair that you're participating? Reach early. Like जब आपका फेयर हो उसके 2 से 3 दिन पहले पहुंच जाओ. अच्छा, 2 दिन पहले? हाँ, 2 से 3 दिन पहले पहुंच Normally जाओ. they reach a day before, or 2 days before. 2 or 3. If it's a new country for you, reach 3 days before. Okay. Get around yourself, cozy with them, you know, like familiar हो जाओ उनके साथ. Okay. थोड़ा आपको वहाँ का वाइब कैसा है आइडिया आएगा, पब्लिक कैसी है, what are they wearing, Okay. everything. Like So this time is to blend in? To blend in. Just आप सरप्राइज नहीं हो जाओ देख के. हाँ. वैसा. You have to blend in with them. Obviously you are in their country, so you have to do according to their culture, blend in. थोड़ा blend in हो जाओ. थोड़ा कंट्री देखो, आसपास सिचुएशन देखो, क्या चल रहा है, बी अवेयर. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ये सब तो हम पहले से देख के ही जाते हैं ऑलरेडी. ये सब वर्क हम करके कि कैसे यूज़ करना है, क्या चलता है वहाँ पे, कौन सी ऐप्स चलती है. जैसे फॉर चाइना गूगल डजंट वर्क देयर, गूगल मैप वोंट वर्क देयर, जीमेल आपका काम नहीं करेगा. सो यू हैव टू टेक VPN. VPN के थ्रू आप चला सकते हो. सो कौन सा VPN काम करेगा, ये सब होमवर्क आपको पहले से करना पड़ेगा. ऐसा है. दिस इज जस्ट फॉर द चाइना, नॉट फॉर अदर कंट्रीज. बट जैसे चाइना जाते हो तो आप ये सब करके जाते हो. वहाँ पे चाइना में जैसे अब इफ़ यू आर प्योर वेज या जैन का ऑप्शन वेरी लिमिटेड इन चाइना. सो यू हैव टू टेक फूड अकॉर्डिंगली. जो प्री पैक फूड आता है वो आप लेके जाओ. बट इफ यू आर ओके विद द नॉन वेज देन यू विल ऑल्सो फाइंड गुड रेस्टोरेंट्स इन नॉन वेज, देन इट इज फाइन. सो अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज़ कि आपका फूड का प्रायोरिटी क्या है, आपका ट्रैवल का प्रायोरिटी क्या है, टिकट्स कभी महंगा सस्ता, ये सब पहले से देख के सोच समझ के जाना चाहिए. एंड व्हेन यू आर इन द ट्रेड फेयर लाइक इन द चाइना, यूज ट्रांसलेटर. Okay. Because the people doesn't understand English very easily. So you can hire translators. So you're saying as a person? As a person. Oh, interesting. Yeah. So hire translator. आपको ऑप्शन दिया जाता है. फेयर्स में जाओगे तो आपको ऑलरेडी आ जाएंगे कि you can hire translators if you want or not. So depending on the country, like China people doesn't speak English, so you can hire a translator. Obviously if it's viable and feasible for you, budget में आपके आ रहा है तो ही, but they are not as expensive. And that gives a different positioning that you're serious. If you use a translator, it will be very good for you and for your customers also. So easy हो गया. Easy हो जाएगा आपका वो काम. तो वो एक आपको प्लस पॉइंट देगा अगेंस्ट योर कंपेटिटर्स. वैसा. Okay. आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपका ट्रांसलेटर है तो वो तुरंत आपसे बात करेंगे. तो मोर एंड मोर पीपल विल कम. Okay. एक होता है, दिखता है कि यहाँ पे भीड़ क्यों है. ओके, यहाँ पे ट्रांसलेटर है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड क्विकली, हम समझा सकते हैं बातों के थ्रू. तो वो आपका एक प्लस पॉइंट अवेयर करता है. Okay. ऐसा. Okay. And which is your आपका फेवरेट कंट्री कौन सा है फॉर एक्सपोर्ट्स? चाइना. Why? गुड क्वांटिटी. बिग क्वांटिटी. ओके. वेरी गुड क्वांटिटी. बट चाइना इज़ वेरी, मतलब वो माना जाता है एज एन एक्सपोर्टर. इट्स वेरी यूनिक दैट यू आर एक्सपोर्टिंग टू चाइना. या. सो व्हाट वी डू इज रॉ मटेरियल्स हमारे जो भी है वो चाइना से इम्पोर्ट होते हैं. सो इम्पोर्ट भी फ्रॉम चाइना ओनली, बट द एंड प्रोडक्ट द डाइज दैट हो गया वो हम चाइना एक्सपोर्ट करते हैं. ओके. सो इट्स वेरी गुड थिंग. ओके. चाइना इज अ वेरी गुड, जो बोलते हैं ना खपत, वेरी गुड कंजप्शन. ओके. चाइना इज वेरी बिग इन वॉल्यूम्स. वेरी बिग. ओके. वैसा वॉल्यूम आपको शायद यूरोप में भी नहीं मिलेगा और यूएस में भी. उनका खुद का कंजम्पशन बहुत है. पॉपुलेशन बहुत है, तो खुद का कंजप्शन बहुत है. Okay. Big market. Okay. So export में like you know what do you see India in the next 3 to 5 years or 5 to 10 years? आपको अभी क्या visibility दिख रही है? Because हम लोग slowly grow हो रहे हैं. But like you know, and आपकी भी जर्नी में 2016 से जैसे आपने एक्सपोर्ट शुरू किया, अभी भी आपकी भी जर्नी अच्छी रही होगी, प्रोग्रेसिव रही होगी. You would have added many countries. So if you can talk about कि अभी आप ऑलमोस्ट कितने कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं ओवरऑल, एंड like you know and what is the future आप देख रहे हैं कि like you know for your company कि like you know Aura would be like you know we look at in the 5 years 10 years we'd like scaling this much like you know so exports में what are your thoughts?
एक्सपोर्ट्स में अभी जैसे गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है मेक इन इंडिया करके, सो एक्सपोर्ट्स इज ब्राइट, फ्यूचर ब्राइट है. यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड प्रोडक्ट इन योर हैंड. प्रोडक्ट सिलेक्ट करो अच्छा सा, या देखो क्या जा रहा है मार्केट में. एक्सपोर्ट्स कभी भी कोई भी कंट्री के लिए इट्स वेरी गुड. सो गवर्नमेंट हमेशा एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने ही वाली है. व्हाई? Because it's good for your economy. So it brings You're in the bringing foreign currency exchange. So like it's good for your country, for your economy, everything. So exports के लिए हमेशा global push रहा है, हर country लेके अपना अपना प्रगति है. So exports in evergreen field and choose a product very wisely. Okay. ऐसा नहीं कि ये भी ये कर रहा है, वो कर रहा है, मखाना कर रहा है, मखाना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, राइस कर लिया, ऐसा नहीं है. The product that suits you well, जिसमें आप ब्लेंड हो सकते हो, जो आपको सूट कर रहा है वो करो. भले मार्जिन कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, वॉल्यूम्स कम एंड ज़्यादा हो सकते हैं, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ अनदर एक्सपेक्ट. बट जो आपको प्रोडक्ट के साथ ब्लेंड करना पाए, आप वो एक्सपोर्ट करो. आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आप स्ट्रेंथ बना सकते हो, जो आपको लगता है सस्टेनेबल लॉन्ग पीरियड्स है वैसा. लाइक एंड कीप इनोवेटिंग. ये चीज़ भी मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि सपोज आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ मखाना. पीपल आर एक्सपोर्टिंग मखाना, राइट? बट अब आप अगर मखाने में फ्लेवर ला देते हो, मखाना फ्लेवर्स, सो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है. वैल्यू आपने ऐड कर दिया उस पर, तो आपको उसका अब जो आपको 100 रुपये मिल रहा था वो शायद आपको 150 या 200 रुपीज़ मिलेगा. ओके, तो आपने एक वैल्यू ऐड कर दिया. सो व्हेन यू ऐड द वैल्यू, योर मार्जिन्स विल गेट बिगर. ओके, या सो ऐड द वैल्यू इन दैट. रॉ मटेरियल्स जैसे जो बेसिक रॉ प्रोडक्ट है वो आप एक्सपोर्ट करो. मेक एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ पोटैटो. कई लोग पोटैटो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट सेम थिंग व्हेन यू डू फ्रेंच फ्राइज, फ्रीजर करके उस फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फ्रेंच फ्राइज में मार्जिन हायर है कंपेयर टू पोटैटो. सेम विद द टेक द एग्जांपल ऑफ ये नींबू. नींबू हम बेच रहे हैं, बट यही नींबू पानी आप बेचोगे तो आपको मार्जिन हाई मिलेंगे. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज इनोवेशन. आपके प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन हो सकता है, आप उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो जस्ट फॉर योर मार्जिन. तो यू विल सस्टेन लॉन्गर. ओके, इट विल हेल्प यू टू इन द बिग रन. लॉन्ग रन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ओके, सो इंटरेस्टिंग आपने शेयर किया कि जो भी एमएसएमई फाउंडर्स है उनको ये भी दिखना चाहिए कि अगर आप एक चीज़ बेच रहे हो, वो बेचते रहो, बट उसका जो नेक्स्ट वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है वो भी आपको करना, उसको वो करके एंड देन वो भी एक वर्टिकल करके आप डाल सकते हो. बिकॉज कॉम्पिटिशन अभी बहुत है मार्केट में. कॉम्पिटिशन बहुत है. जेन जीज आर कमिंग इनटू द मार्केट नाउ एंड दे आर tremendously like they want everything fast. और मार्केट इवॉल्व भी बहुत फास्ट हो रहा है. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. अब ऐसा नहीं है कि मैं मेरा प्रोडक्शन जो ट्रेडिशनल वे है उसी को मैं लेके बैठा रहूँ, करता रहूँ. नो डाउट शायद मे बी 5-10 ईयर्स आपके आगे चल जाएंगे, लेकिन मार्केट इवॉल्व बहुत जल्दी हो रहा है. सो यू हैव टू बी इनोवेटिव. ओके, सो नाउ लाइक यू नो इतने साल हो गए हैं, आप एग्जाम्पल ऑलमोस्ट 10+ ईयर से एग्जाम्पल आप बिजनेस में हैं. सो एंड आपके दादाजी भी एग्जाम्पल बिजनेस में है, एंड योर एग्जाम्पल डैड इज ऑल्सो इन द बिजनेस. सो वन लेसन जो आपने बिजनेस में आपके दादाजी से सीखा है, एंड वन लेसन जो आपने आपके पापा से सीखा है, दैट यू फील आई हैव लर्न दिस लेसन फ्रॉम देम एंड आई हैव एब्जॉर्ब्ड इट इन माई सेल्फ, एंड ये बहुत मस्त लेसन. सो द लेसन मैंने दादा सीखा है, लाइक ही इज़ अ वेरी फाइनेंशियल पर्सन. ओके, आज भी वो जैसे हमारे फैक्ट्री में डिवाइडेड है, तो कुछ भी फाइनेंस का काम होगा तो चेक साइड दादा ही करेंगे. एंड प्रोडक्शन का रिलेटेड होगा तो इट विल बी टेकन केयर बाय माई डैड. ओके, एंड एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड कुछ होगा तो इट विल बी टेकन बाय माई सेल्फ. ओके, सो माई ग्रैंड फादर ऑलवेज यूज टू से लाइक भरोसा करो बट पैसों के मामले में हमेशा देख के रहो. ओके, यू नो यू पैसे लेने जब लोग आएंगे तब आपसे 100 बहाने बनाएंगे, 100 दुख दर्द बताएंगे आपको कि सब ये हो गया, पैसा दे दो. बट वही पैसा जब आप मांगने जाओगे तो आपको 100 बहाने बताने पड़ेंगे, और तो भी आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा. तो when you're lending money or when you're trusting someone, please just be careful. Okay. And from my dad, what I've learned is like just look into the long-term relations with your customers rather than short-term profits. And how do you do that? And short-term gain के पीछे मत भागो. Like आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कस्टमर का एक एडवांस आ गया, अब आप उसको माल की जगह आपने नमक भेज दिया. नमक जो भी सेट है या फिर लोअर ग्रेड है, जो भी लोअर ग्रेड का क्वालिटी भेज दिया, तो आपने सोचा कि मैंने कमा लिया, इसमें बहुत कमा लिया, बट दैट कस्टमर वोंट रिपीट वैसा, because he also understands or can see through, और लेकिन एक बार हो जाता है. तो ये आप लॉन्ग रन में नहीं भाग जा पाओ. तो फॉर द लॉन्ग टर्म just maintain very good relations with your customer. Listen to them, be honest to them. Customer is only the key.
आप उनके साथ जितना ऑनेस्ट रहोगे, जितना आप उनके साथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखोगे, एवरीथिंग शुड बी ऑन मेल्स, ऑन लाइक जो व्हाटएवर आपका जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, टर्म्स एंड कंडीशन है, यू हैव टू बी क्लियर विद देम फ्रॉम द डे वन as per their standards or expectation, as per अगर the आप country. उनके स्टैंडर्ड्स सेट नहीं कर पा रहे तो बी ऑनेस्ट विद देम कि मेरे से यहाँ तक ही होगा. देन इट्स देयर डिसीजन कि उनको आपके साथ काम करना है कि नहीं. बट डू नॉट चीट पीपल, लाइक डू नॉट डू, बिकॉज वो आपके लॉन्ग रन में नहीं जाएगा. Okay. वो आप भले शॉर्ट टर्म आप कमा के निकल जाओगे, बट लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रांड इमेज है, वो सब पे नहीं होगा. Okay. सो डोंट. Okay. So now you've been handling, आपने ये दोनों lessons भी सीखे अपने पापा से एंड ग्रैंडपा से. So and running a factory अभी के टाइम में इट लाइक नो इट्स मच मोर इवॉल्विंग वाला फेज. सो आपको कोई ऐसा सिचुएशन याद है जहाँ पे क्राइसिस हैज हैपेंड इन फैक्ट्री, राइट, एंड देन लाइक यू नो यू हैव हैंडल्ड दैट क्राइसिस और यू हैव सीन समवन हैंडलिंग इट एंड एनी लेसन्स लर्नड फ्रॉम क्राइसिस हैंडलिंग? क्राइसिस में आई रिमेंबर वन टाइम के व्हेन द रॉ मटेरियल प्राइस जो हम इम्पोर्ट करते थे, दैट वेंट टू 3 times. ओके. बिकॉज ऑफ सम एक फैक्ट्री में शायद आग लग गई थी चाइना में. अच्छा. तो प्रोडक्शन काफ़ी हॉल्ट हो गया था. तो जो रॉ मटेरियल चाइना से आता था वो कम हो गया, प्राइसेस कम हो गया, मतलब वो वॉल्यूम कम हो गया, तो अब उसका डिमांड बढ़ गया, ऑब्वियसली होता है, तो उसका प्राइस ऑब्वियसली डबल ट्रिपल हो गया. नाउ यू हैव ऑर्डर्स इन योर हैंड, व्हाट टू डू. सो दैट इज़ ऑल्सो टाइम दैट आई लर्न फ्रॉम माई फादर कि उन्होंने जो लोकल उनके सप्लायर्स थे उन सबको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड थोड़ा टाइम लगेगा. वी आर नॉट कमिटिंग, ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं देंगे, वी विल डू बट स्लोली वैसा. एंड ही कमिटेड दैट, उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उन्होंने उनको फुलफिल किया. बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज द थिंग, क्राइसिस आएंगे जाएंगे, एवरीथिंग इज गोना हैपन, बट स्ट्रेस फ्री होके काम करो. यू आर ऑल्सो ह्यूमन, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, सब समझते हैं आज एक दूसरे को, ऐसा नहीं है. यू हैव टू बी अंडरस्टैंडेबल एंड जस्ट कीप काम. क्राइसिस आएंगे चले जाएंगे. Keep calm, be honest, keep calm, communicate. be honest, communicate with honest communication. Honest communication is much needed. Yeah. Okay. That is the thing. Got it. Good relations will take you longer time. Like वो आपको दूर तक लेके जाएंगे. Okay. Yeah. So yeah. So Kevin, so like you know, आपने बहुत सारा perspective दिया, right? No, right from the beginning in terms of your company's products and in terms of like you know how आपने कैसे value add किया exports में. तो मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक एक फैक्ट्री में 3 जनरेशन्स हैं, राइट, एंड तीनों जनरेशन्स ने अपना अपना फ्लेवर डाला है, करेक्ट, राइट. एंड सो व्हाट इज़ दी लाइक नो आपको इसमें बिजनेस स्ट्रैटेजी में या फिर एग्जांपल तीनों का क्या लेयर दिख रहा है? ऑब्वियसली 3 people आर डूइंग 3 things. एक फाइनेंस एग्जांपल कोर पे है, 1 person प्रोडक्शन के कोर पे है, एक है ग्लोबल एम्पलीफिकेशन के लिए आप एक्सपोर्ट पे हो. But 3 generations born in 3 different eras, correct, with 3 different mindsets. Correct. So what is the like you know what is the implications आपको क्या दिखते हैं इसमें? What is the value or what is the perspective इन लोग कहाँ पे, what is the plus things, what is the challenging things, because there are a lot of MSME founders जो इस पे है, right? Some cases में fathers and grandfathers they know and they are transparent, right? And in some cases they are not, right? Some of them have like you know held on to certain things, some of them have let gone, correct, right? So what is your learning like you know being working with your dad and grandfather in terms of like you know their mindset and like you know what is the things that's happening? So I will tell, like तीनों का अलग अलग mindset है. My grandfather का mindset अलग, father का अलग, मेरा अलग, and that's why I think we have divided the divisions के खिचड़ी ना हो जाए, clash ना हो जाए, खिचड़ी ना हो जाए. And one thing that I've learned that you have to keep patience. आपको अगर कुछ समझ आ रहा है, बट अगर उनको as a new entry into the factory, अगर मुझे कुछ दिख रहा है कि ऐसा करना चाहिए, लाइक आई एम मोर फेवर इन द AI और द ऑटोमेशन, कि अब थोड़ा आपको यू नो CRM लाओ, थोड़ा अभी जो काम चल रहा है जैसे वो ट्रेडिशनल वे में चल रहा है. नाउ व्हेन यू आर न्यू टू द फैक्ट्री आपको लगता है कि कितना स्लो है, ये बहुत ट्रेडिशनल वे है, कि यार इसको तो बदलो, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, यहाँ पे CRM लाना चाहिए. अभी भी वो बुक स्टाइल चल रहा है कि इन एंड आउट का एंट्री हो रहा है, अब फिंगरप्रिंट वाला ले आओ, लाइक ये सब है. लेकिन दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. ग्रैंडफादर जनरली, माय ग्रैंडफादर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ये सब नए चोचले हैं. यू नो दैट इज द चैलेंजेस दैट यू फेस. बट व्हाट वी हैव लर्न, लाइक ओके, धीरे धीरे उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है. ओके,
बट वेरी लाइक कैसे मैं समझाऊँ आपको कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. आप एकदम से जाके उन पे थोप नहीं सकते और पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकते. पूरा चेंज मत करो, वो उनका बनाया हुआ है, वो उनका एनवायरनमेंट है, आप उनके एनवायरनमेंट में जा रहे हो. तो आप किसी और के एनवायरनमेंट में जाके ब्लेंड इन हो रहे हो. फिर फर्स्ट यू नीड टू ब्लेंड इन. आप उसके में ब्लेंड इन हो जाओ, फेमिलियर हो जाओ, 3-4 साल देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप फेमिलियर हो जाए, एम्प्लॉयज आपसे फेमिलियर हो जाए, आपकी बात सुन रहे हैं, फिर धीरे धीरे चेंजेस लाओ. बट they will accept. Okay. But एकदम से you will do this and that, they will understand कि like तुझे तो नया है, तुझे क्या पता है, हमने दुनिया देखी है, which is true. हमने नहीं देखी है, उन्होंने ज़्यादा देखी है. But make slow changes in their environment. That is what I suggest. Okay. हो जाता है, काम हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं है, वो आपके ही माँ बाप है. Okay. काम हो जाएगा, but धीरे धीरे. Okay. So you have to be patient. आपको patiently करना है. Patience. And you have to blend in. You have to take 3-4 साल as you have come into the business. It is for my case, not for everyone case. But yeah, that is like. ओके. सो इसी एस्पेक्ट में क्या रहता है कि हम लोग जैसे हमारे फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो डैड एंड ग्रैंडपा एक साइड पे है ऑब्वियसली. करेक्ट. बट जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये लोग भी ऑलमोस्ट काफ़ी सालों से कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, इनके साथ में होंगे, राइट. एंड दे हैव लाइक दे हैव वर्क टुगेदर, दे हैव गॉन टू क्राइसिस टुगेदर, सो दे हैव अ डिफरेंट बॉन्डिंग, राइट. एंड एग्जाम्पल नाउ द न्यू जनरेशन कम्स इनटू द बिजनेस, राइट. सो इनके मैनेजमेंट में एग्जाम्पल, and some of us might, because we are there, we might have less patience. We try to be, or maybe we try to get things done faster, or like everybody is working for the benefit of the company, लेकिन perspectives अलग-अलग के हिसाब से आते हैं. So handling of team members में जो older employees हैं, लेकिन तो उनको आपने कैसे, लेकिन is there any hack, या फिर कुछ आपको सक्सेस मिला हो धीमे धीमे, या फिर लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन या इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं? Older employees generally are very good for company. They know in and out of the company, and you need to treat them very well. With lot of respect. With lot of respect. So आज भी जैसे मेरे जो older employees हैं, I am obviously younger to them, but I don't treat them as a like मैं उनका boss हूँ, वैसा नहीं. I also treat them very हाथ respect करना, हाथ जोड़ना and all, bonuses देना, दिवाली पे, ये सब जो trend चल रहा है वो तो already है ही. And बस just create a little boundary. एक जो thin line बोलते हैं हम, वो बहुत ज़रूरी है. आप कंपनी की पॉलिसीज बना लो, तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज ऑफ कंपनी. सपोज किसी को एडवांस चाहिए, एनीथिंग, को छुट्टी लेना है, सब में एसओपी और एक सिस्टम ऑफ एसओपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो हमने एस्टेब्लिश कर लिया है. सो व्हाट इट डज, लाइक वो आपका एक बाउंड्री क्रिएट कर देगा एम्प्लॉय से बॉस के बीच में. नो डाउट वो रिलेशंस आपका अच्छा चलता रहेगा, एवरीथिंग इज गुड, बट जो भी आपको सपोज एडवांस देना है, एनीथिंग, लीव हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपका एक प्रॉपर एसओपी से फॉलो होगा. सो इट विल बी सेम, नॉट जस्ट फॉर दैट एम्प्लॉय, फॉर एवरी एम्प्लॉय. सो इट क्रिएट्स अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट. और वो एक उनको लगेगा कि हम सब एक ही लेवल पे हमको ट्रीट किया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि वो नया आया तो उसको अलग मिल गया, या पुराना है उसको इतने बेनिफिट्स मिल गए. नथिंग. The rules are same for everyone. You have to follow SOPs. That is very important. This is what we have done in our company, and it is going nice. Okay. एंड इसी सिचुएशन में लाइक सो कुछ कंपनीज में लाइक वो बड़े होने के बाद में एसओपी डालते हैं, कुछ कंपनीज में क्या स्टार्टिंग में वो डाल देते हैं, लेकिन ऐसे एवोल्यूशन चल रहा है. बट कभी कभार ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है, राइट. सो और कभी कभार सीनियर टीम मेंबर से भी कन्फ्लिक्ट आता है, कभी जूनियर से भी आता है. एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फैक्ट्रीज में इज अगेन वन मोर टास्क, राइट. सो और ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो आपने कस्टमर्स के साथ में आपने किया है, दैट इज विद ऑनेस्टी, right. So you've been honest to the customer and told कि भाई ये situation है, and ensuring that like product is delivered with the right quality, so that the long term relationship is maintained. Correct. तो ये आपने customer के साथ में किया है, ये वाला strategy और technique और like aspect और values and principles. But employees के साथ में like conflict handling आप कैसे manage करते हैं? If someone doesn't want to work or someone takes you for granted. Yeah. So हर person का एक ego होता है, and you have to satisfy their ego. So जस्ट सिट विद देम, उनके साथ बैठो, क्या प्रॉब्लम है समझो अच्छे से, एंड उनका ईगो का फीड कर दोगे तो प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड. एग्जांपल जैसे हमारी फैक्ट्री में हुआ था, लाइक फैक्ट्री मैनेजर है एंड द बैच लेते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं. देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट के टू एचओडीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, के ये लोग टाइम पे नहीं मंगवाते रॉ मटेरियल, इसकी गलती उसकी गलती. सो दिस दोनों को लेके साथ में बैठे मेरे पापा, लाइक माय फादर, मैं भी था उस मीटिंग में, आई हैव सीन. सो बैठा है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है. व्हेन यू टॉक टू देम यू विल गेट टू नो कि प्रॉब्लम होता नहीं है, और इट्स जस्ट देयर ईगो.
Oh. कि हमको बताना होता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, दूसरा सोचता है कि मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ. असल में नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट कि वो इतने पुराने होते हैं तो उनको ऐसा होता है कि नहीं ये फैक्ट्री मेरी वजह से चल रही है, मैं छोड़ के चला जाऊँगा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी. बट नथिंग लाइक दैट. वो खाली आप उनका ईगो सेटिस्फाई कर दोगे, दे विल बी हैप्पी टू गो. Okay. So this small doses of ego you need to give them, like देते रहो. Okay. So it's fine for them. It's workable for them. Okay. So satisfying this ego is like done in what ways? I mean, like. In terms of giving respect. Okay. Not the salary. Salaries तो आप उनको ऑलरेडी दे ही रहे हो. But वो respect आप उनको आप देते रहो. वो treatment जो आप कर रहे हो वो proper देते रहो. Greet and meet हो गया. Take their advices. That's a very Listen to interesting them. way. Take their advices. वो आप follow कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके फैक्ट्री में शिफ्ट हो रहा है नहीं, दैट इज सेकेंडरी. बट लिसन टू देम, टेक देयर एडवाइसेस, दे विल फील गुड कि सेठ मेरी सुन रहा है. ओके. या दिस इज लाइक ईगो फीडिंग ओनली कि वो सेठ तो मेरी सुन के कर रहा है. दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स दैट हैपन. बट इफ यू डू दिस तो आपका फैक्ट्री स्मूथ रन करता रहेगा. या सो आपने शेयर किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टेंटली एग्जाम्पल हैव कॉन्वर्जेशंस विद एम्प्लॉइज, उनके करते रहो कॉन्वर्जेशंस एंड have the perspective to get in their inputs so that you're able to feed into their perspective or into the ego, and then they are like amplified. Correct, because company run through employees. company में अकेला नहीं चला सकता, company ना वो अकेला चला सकता है. it all is hand in hand. सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो ही काम होगा. So just make sure it goes uniformly. अच्छे से, nothing else. Yeah. And Kevin, so ये पूरे journey में like what has been the role of luck in your business or in your journey? I born into this family. That was my luck, I guess. So you say luck has played a role? Yeah, I don't think everyone is really granted कि भाई हम इस family का people are born in different families and everything. I was born into this manufacturing family. My grandfather started this, my father, and I was born into this family. So I think this is my luck. Okay. And I am that, बोलते हैं ना कि मुझे ऊपर से मिला इतना. Not everyone is grace, like not everyone is like, क्या there's a term like जो हम बोलते हैं ना grateful बोलना या फिर not golden spoon, born with a golden spoon. Yeah, कि I was maybe that luck कि मैं golden spoon के साथ born हुआ. And with a golden name. And with a golden name. Yeah. Okay. Yeah. But yeah, don't फिर आप उसको आपके दिमाग में मत चढ़ा लो कि मेरे पास सब कुछ है. You need to work hard. सक्सेस ऐसे नहीं मिलती. इट्स जस्ट दैट कि आपके पास एक एडवांटेज आ गया कि यू आर बोर्न विद दैट इन दैट फैमिली, कि आपके पास एक बनाया सेटअप है. यू आर एबल टू लेवरेज, वो अलग गेम है. एबल टू लेवरेज, बट दैट डजंट मेक यू फील कि आप ईगो बढ़ा लो अपना या फिर कि मेरे पास सब रेडी है. यू हैव टू एक्सपांड इट, यू हैव टू वर्क ऑन इट, एंड दैट विल ऑल्सो कम ओनली थ्रू हार्ड वर्क. नॉट जस्ट कि आप बैठे बैठे काम कर रहे हो. आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको घुसना पड़ेगा, उस चीज़ों को एक्सपांड करो. देन एंड ओनली इट इज़ feasible and viable to you. Okay. Yeah. Okay. So Kevin, so as you shared, your perspective, another thing that is happening in whole of India is the Make in India concept. Yes. And वो भी almost वो period में start हुआ था. Correct. And now we are looking at the brand India wala perspective, the PM is example rallying India as a brand India globally. Correct. Right, so globally भी recognitions हो रहे हैं. Right. And government यहाँ पे Make in India started, but अभी वो amplify करने के लिए वो चल रहा है. Correct. Example how we can amplify it further. So आपकी industry में भी in the dice industry or in the as a whole Make in India, do you have any ask from the government? आपने एग्जाम्पल सब्सिडीज ली होंगी या फिर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि भाई गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड मी और माई फेलो MSMEs in certain manner. But this could be some very creative ideas or creative things that the government can do which can help the MSMEs or the MSME founders, which has not been done yet. But ऐसा कुछ आपके मन में thought है या फिर any perspective on this you could share? Government is really doing everything to boost the MSMEs and we are very grateful to them for such steps taken. But I think most of the part, government is doing everything. Like most of the part they have covered everything. But like अभी last recent budget में the taxes were also cut. For the locals. Yeah, I think government भी थोड़ा time ले रही है, लेकिन धीरे धीरे we are making India progressive. Yeah. So the reforms are coming in. Reforms are coming in. They are kicking in slowly, but they are doing it. I have no complaints with the government yet. Anything. Okay. Yeah. And even in context of exports, and so the time duration of logistics has been drastically reducing. Correct. They made the whole thing digital and it's been going crazy. Yeah.
So उससे भी आपको कुछ फर्क पड़ा है in terms of the whole? काफ़ी पहले जैसे शिपिंग बिल कॉपीज आती थी तो लंबे लंबे पेजेस आते थे एंड ऑल दोस थिंग. नाउ इट्स अ क्विक, हमको PDF आ जाता है. सो गवर्नमेंट में काफ़ी चेंजेस किए. जस्ट क्लियरेंस प्रोसेस भी आज 1 डे में हो जाता है. पहले 4-7 दिन 5-5 दिन लगते थे. अब तुरंत 1 दिन में क्लियर हो जाता है. And within 5 days you can catch your vessel, which is very important, which is very good. So the fastness in logistics and everything, it is very commendable and it is very good. So hats off to the government for this. I like what I said, like काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं. और I think that is important. Constant reforming is there and it is, you can see the results. It is not just happening, result भी आपके पास आना चाहिए. तो result भी आ रहा है, which is very good. The future is bright for India, for sure, definitely. Export में do you seek anything that the government can contribute? Because आपने सारी चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी अभी देखेंगे तो globally Indian brands are very less. Right? You know, Indian brands being amplified. We might see Royal Enfield bike somewhere. We might see TCS somewhere. We might see Mahindra brand somewhere internationally. Right now, so Indian brands are very less, and exported brands, because they're exporting services. Some are exporting products, like vehicles, but Indian brands as in brands are not there. And all MSMEs are doing small exports utna karke. They are there. But if we see other companies, there are big brands coming out of every country or continent. So aapke perspective mein, what can be done for Indian brands to be amplified? Is there something that the government can do? I think the internal challenges जो है, like the internal competition जो है, वो बहुत है. So what we can do is we can collaborate with different countries and make one big brand. This can be done. Yeah. So the strengths of India and strength of that country. You need to partnership with them. Collaborate कर लो, वैसा. Something like that. So government can set more opportunities for Indian MSMEs for collaborations or joint ventures. That is more important. And co-branded and then export. Co-brand, with different countries. Like, they can set up the meetings or the head-to-head conversations with the set of delegates and everything. They can do that. That can be done. And recently, in an entrepreneur's journey, being in a family business, entrepreneurs, the role of the second half plays a very important role. Right. So, and I feel recently you got married as well. So what has been the contribution of your better half in your life, or like how does that happen? She supports me very well. In what? In every way, not just like. What can I say? She is my lucky charm, maybe, because she has been with me from a very long time. I have seen her from a very long time. We know each other very well, and so the chemistry is there, or the mindset matches there. And she has seen me struggling also. So she knows my in and out and everything, and she has supported me in each and every way. Like when I used to, for the first order for 6 months that I told you, तो वो 6 महीने like I used to work very hard. सुबह जाता था 8 o'clock, रात को 9-10 बजे आ रहा हूँ, and she will still be available for me. She will meet me, like चाय पे मिल लेते हैं and everything, like stress release हो जाता था. She will support me every time, not just good times and bad times also, which has played a very important role for me. So you need to find a good partner also, which is very important. Because as you said, a lot of things are rapidly happening. So all these things are there, and then you have all the things happening and the challenges and everything. So I think that so what is the one habit that has made you a better version of you? One habit. Be kind. Being kind. Like how does it be kind and polite to people and help people maximum. क्या फर्क पड़ता है? Like how does it help you? It helps you to be grounded. अच्छा. And it's important to be grounded. It's important to be grounded. हवा में नहीं उड़ना है. Okay. Stick to ground. Okay. So, any interesting books you read or you podcasts you watch? I don't read books. To be honest, मुझसे book नहीं पढ़ी जाती. I don't read books. So you consume podcast. I do see like YouTube से podcast जो finance वाले होते हैं. But how do you consume content to stay updated as an entrepreneur? फैक्ट्री जा रहा हूँ. रेडियो पे लगा दिया. नहा रहा हूँ तब सुन लिया. रेडी हो रहा हूँ तब सुन लिया. एनी बीच में जो भी टाइम मिल रहा है गैप में आई एम लिसनिंग टू देम. खाना खा रहा हूँ तब देख लिया थोड़ा मोटा. Anything. So as an entrepreneur,
to stay ahead of the competition or to know what is going in the market, ये करने के लिए what are the ways you are upgrading yourself? Like it is like एक तो आप international fairs में जा ही रहे हैं, तो वहाँ पे आपको perspective मिल रहा है. Keep talking to customers. अच्छा, तो मेन फीडबैक लूप आपको वहाँ से आ रहा है. कस्टमर से बात करते रहो, वही आपको बताएगा मार्केट में क्या चल रहा है. अच्छा, तो वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो. ओके. टॉक विद कस्टमर्स, बी इन टच विद देम. ओके. बात करते रहो उनसे. नॉट जस्ट वैसा कि फॉर द बिजनेस ओनली, थोड़ा पर्सनल टच भी लाओ. लाइक कैसा है आपके लाइक फैमिली, हाउ इज योर फैमिली, योर ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, चिल्ड्रन. When you are going to visit them, take some small gifts for them. So it, you know, it थोड़ा नरिश करता है नेचर को ऐसा. So it is very important. Okay. What is your advice for the next generation of Kevin Agarwals who are going to be joining their business in their own family business? I think you must focus more on the quality. Okay. And क्वालिटी पे ध्यान दो. क्वालिटी पे ध्यान दोगे तो कस्टमर्स अपने आप आएंगे. ओके. वही है कि जो शॉटगन के पीछे मत भागो कि फटाफट काम कर दिया हो गया, क्वालिटी ऊपर नीचे चलेगा. नो नो नो. क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी बोथ गोज हैंड इन हैंड. जितना आप इनोवेट करते रहोगे अपने प्रोडक्ट को या अपने आप को, कीप योरसेल्फ अपडेटेड. नो, सुबह उठ के जाओ, वॉकिंग करो, ग्रूम योरसेल्फ वेरी वेल, कीप अपडेटेड विद योर न्यूज़, एवरीथिंग. आपकी जो हॉबी है उसको फॉलो करो. Keep open-minded, ready to learn. You should be ready to learn. कुछ भी मार्केट में नया you should know. Okay. Yeah. So लेकिन जैसे आप आपकी फैक्ट्री ज्वाइन करो, एग्जाम्पल आप शेयर कर रहे हैं कि भाई फोकस ऑन क्वालिटी, सो दैट इज वेयर द R&D इज, दैट इज वेयर द लैब इज. तो आपको वो कोर चीज़ पे आपका फोकस आ जाएगा. एंड इंडिया इज अगेन बैड इन R&D. तो ये वाला पर्सपेक्टिव विल लाइक विल अगेन हेल्प यू गेट ऑल द टच पॉइंट्स. Indians are not bad in R&D. We don't invest back. They don't invest much. So invest more in R&D, and main focus should be on sustainability and quality. That goes hand in hand, and that will take you to the bigger leap. Longer race. वो आपको नहीं छोड़ेगा. ऐसा है. अगर आपने क्वालिटी छोड़ दिया तो आप बीच में रुक जाओगे. ओके. आप एक्सपोर्ट संभाल रहे हैं, आपने स्टार्टिंग क्वालिटी से किया था, कि डैड प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्जाम्पल डैड लुक्स एट फाइनेंस. बट एज अ फैक्ट्री में आपका फेवरेट पार्ट ऑफ द फैक्ट्री क्या है? Your favorite part of the factory? My favorite part is exports only. Exports. But in terms of favorite part in the factory, like a zone or a division or a... that is lab. Lab. That's the first love. That's the first love. Okay. Because I've been in that from college. College में जाके मैं lab में ही बैठता था. Okay. So that is my first love. Okay. I still used to go sometime in the lab, do testing myself and all. कुछ भी problem है तो I'm looking for that. Okay. Lab is my R&D. Okay. And Kevin, all these intense things happening in terms of exports, in terms of crisis, in terms of growth, how do you recharge yourself? Like as an entrepreneur, right? So what is the way in which you recharge yourself? It keep me on toes, like anything that happens in the international market. But how do you recharge? I recharge. You play sports? I play sports and keep meeting my friends every day I meet my friends. Okay. रात को घर जाके आफ्टर डिनर यू हैव टू रिचार्ज योरसेल्फ एवरीथिंग. सो आई हैव लाइक अभी पिकल बॉल बहुत चल रहा है. सो आई गो टू पिकल बॉल एवरी डे. आई हैव माय पास लाइक मंथली पास. दैट्स अ स्पोर्ट पास दैट कीप्स मी रिड्यूस माय स्ट्रेस एंड एवरीथिंग. कीप मी एक्टिव ऑल द डे. एंड देन यू आर हैविंग दिस कन्वर्सेशंस एंड टू एंड फ्रो. सो करेक्ट. सो देन यू आप उसके जो आपका ग्रुप है आपका इंडस्ट्री का, उनसे मिलते रहो. वो आपको देते रहेंगे, न्यूज़ देते रहेंगे, आज ये चल रहा है, वो हुआ, आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. कीप योरसेल्फ अपडेटेड थ्रू इट एंड कीप डेवलप अ हॉबी. जो एक हॉबी है जो आप उसमें डेवलप करो, वो आपको बहुत मदद करता है टू रिचार्ज योरसेल्फ एंड एवरीथिंग. ओके. सो एनीथिंग यू लर्न फ्रॉम पिकल बॉल? पिकल बॉल इज गुड. मेरे को पिकल बॉल से नथिंग सो मच. नथिंग. सो एनीथिंग इंटरेस्टिंग यू आर डूइंग फॉर अपस्किलिंग स्टाफ at the factory? Any creative things you have done in the factory? I think upskilling, या फिर not creative, but we do engage them like every fourth Saturday or every fourth Saturday of the month we will take them to play cricket. Is it in the factory? Not in the factory, to the बाहर cricket खेलने ले जाना. तो फिर factory पे? So factory after 5 p.m. or 6 p.m. So there is one dedicated day. Okay. We are running single shift. Yeah. There is a double shift, but for double shift of the worker. अच्छा, तो for the employees it is single shift. अच्छा, तो only employees जो है. For the employees जो lane employees. So taking them to cricket. Go together and play cricket. I also go with them play cricket. Wow. But it's a team game again. It's a team game again. So it helps in team building. हाँ. They trust each other. They will speak to each other. Okay. So वो सब जो एक होता है ना कि निकल जाता है. हाँ.
ऐसा गिले शिकवे जो बोलते टीम के भी अंदर के जो होते हैं निकल जाते हैं. Okay, got it. Yeah. Okay, so what are you doing when you're not working? Or you're always exporting? No. Sometimes you're not I love to exporting. sleep. How to sleep, is it? Yeah. It's okay. So what? How many hours do you sleep? And like, how does it 7 help? hours. 7 hours you sleep. Okay. So that recharges you, or but how to get a good sleep, or like I don't know. मैं तो बेड पे पड़ते ही सो जाता हूँ. I mean, Okay. In that. I have touch wood. I mean, it's very good for me. You I touch don't wood. have to take any pills or anything. I have to watch nothing. Nothing. I just go to bed and I just sleep. Yeah, Okay. it's Okay. touch wood. It's good for me. For me, okay. Yeah. I've seen people they're taking pills and anything. Yeah. Do you have any favorite failure of yours? Any favorite failure? Failures, not failures, but in 11th, I was like, it was a setback, but it was like I got failed in one subject in the final. But when you average it out, it got passed. Yeah, so I was, but that was very setback for me. कि like, okay, 11th में ही ये चीज़ हो रही है. Because I have never failed in subject. अभी school की बात करें ऐसा. So in 11th, I remember that was, I think chemistry was there, and it was just 2 or 3 marks below 35. Like I think तब 35 का एक limit set था, and I was 33. But on an average, when you see, it was okay. So I got it passed away, but that was very okay. यहाँ पे मैं fail हुआ, and then 12th में I was like कि नहीं ये तो नहीं चलेगा, and then I just study करके किया था मैंने. But yeah. Okay. Kevin, so it's been incredible to talk to you in terms of starting from your journey, like how you were in college and how you joined your dad's business, and how your grandfather started the business in 1992, and you guys are into the manufacturing of dyes for a period of over 30 plus years. Correct. And it's again been a family business, and thank you so much for again explaining how the dye is made, and explaining in the context of the applications that we were not aware of, even in terms of the laminates that I had no clue about that's getting made there. And you gave a tremendous amount of knowledge and perspective for exports, right? How any MSME who is going, what are the ways in which they can export, and how they can scale after setting up the exports globally. And you also give a perspective in terms of handling people, handling the generation of your parents or family, and the team members alongside. And how a better half also plays a role in terms of your balancing part as well. So thank you so much for taking out your time, and thank you so much for being on the podcast. Thank you for inviting me, and I hope this had some insights कुछ मिला हो public को, and it was useful for them. And anything, if you need any help in exports or maybe in my industry, you can contact through them. You can like reach out to me anytime. Perfect. I'm available. That's all. Thank you so much.